Assalamu alaikum everyone. I'm sure you all must be doing super good. मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेक्चर दिया था वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा. उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लेट्स हैव अ रीकैप. उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स एंड सिचुएशंस व्हेन वी यूज दैम. कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स थे उनमें व्हाट था, when tha, where, why, who, whose, which, and how. And I told you the purpose is situations and we use them. What question हम use करते हैं, question word use करते हैं जब we have to ask about the object. When जब हमें time का पता करना होता है. Where जब हमें जगह का पता करना होता है. Why जब हमें reason मालूम करना होता है. Who and whom, the both of them are used for person. Whose जब किसी चीज़ का possession हमें देखना होता है. Which when we have a choice of two. And how जब हमें किसी काम के बारे में पूछना होता है कि वो किस तरीके से किया गया, तो हम ये question word use करते हैं. So these are the reasons, these are the situations in which we use different question words. Let's move on towards today's lecture, which is the continuity of the unit 1. Move to the first slide. Today हम will do question type number 6, जिसमें आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है द फिल्म फ्राइटेंड हिम. और मैंने आपको पहले बताया कि हम क्वेश्चन वर्ड व्हाट यूज़ करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक थिंग या ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दो क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल्स दूँ इस क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करते हुए, तो एक होगा एक एग्जाम्पल ये होगी कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हो. ये एक स्पेसिफिक बात है क्योंकि मैं आपसे आपके बारे में पूछ रही हूँ, तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई, एक स्पेसिफिक चीज़ आ गई जिसके बारे में मैं मालूम करना चाह रही हूँ. मेरा दूसरा सवाल एग्जाम्पल होगा व्हाट इज़ योर नंबर, right? So your number is your number, it's not the number of anybody else. So ये एक specific चीज़ है. तो अब आपको शॉर्ट थिंग पता चल गया होगा कि हम क्वेश्चन वर्ड व्हाट किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं. अब आपके लिए बहुत आसान होगा इस स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन बनाना. द फिल्म फ्राइटेंड हिम because there is a thing about which frightens the person. So the question would be what frightened him. What is used to ask about the subject of the sentence when the subject is not human. अब आपको मेरी बात और अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि जब जो subject है, doer of the action है, वो human नहीं होता, तो we use a question word what. Now on this slide you will find you can see two different statements and you have to make questions for them. What you do, look at the statement and find out the specific thing. Okay, for example, in the first statement, the heavy rain destroyed the crops. What is that specific thing that has destroyed the crops? That's the heavy rain. So what would be the question? What destroyed the crops? Then move on to the next question statement, that is the storm woke me up. So what is that specific thing that woke you up? So what would be the question? The storm, right? So what would be the question? What woke you up? And the answer would be the storm woke me up. Okay. On this slide, you can see we're going to do question type 7. The first statement that is given to you is number 120 bus goes there, and the question would be which bus goes there. The second statement is Anjum's father died, and the question would be whose father died. Which and whose are used to ask about part of the subject of the sentence. If I tell you specifically about which and whose, तो हम which question word use करते हैं when we have a choice or the alternative, right? For example, which dress is good, right? I have two dresses and I really want to know
कि इन दोनों में से अच्छा कौन कौन सा है, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, which dress is good. Then if I come to your room and you making bad faces कि मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे नहीं पता कि आपकी किस टांग में चोट लगी है, तो मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछूंगी, which leg hurts, because आपके पास कितनी टांगे हैं, 2 on the lighter note. Okay. Then comes the talk of the. Let's talk about the question word whose. This question word is used to ask about who is the possessor of something, right? कोई चीज किस मतलब अगर कोई चीज है तो उसका मालिक कौन है. Let's move on to the next slide to make things more clear to you. There are two statements and 2 questions here. You can see the first statement is Aisha's mother died. और इसके लिए क्या क्वेश्चन बनाया गया, who died, मतलब कौन फोत हो गया. I really don't know कि आयशा की मामा फोत हुई हैं, तो मैं और ये भी नहीं मुझे पता कि कौन फोत हुआ है, मतलब कोई लेडी है या कोई मेल है. तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होगा कि who died, कौन फोत हो गया. तो मुझे बताएगा जो भी बंदा जिससे भी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है कि आयशा's mother died, आयशा की मामा फोत हो गई हैं. Then comes there is another option like if there is a statement Aisha's mother died, you can use this question word also, whose mother died, मतलब किसकी मामा फोत हो गई. ठीक है, पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड यूज किया who died, मतलब कौन फोत हो गया. But I can ask this question in another way. जब मुझे ये पता है कि किसी की मामा फोत हुई है तो मैं क्या पूछूंगी, मतलब किसी की मदर फोत हुई है पर मुझे ये नहीं पता कि किसकी मदर फोत हुई है, तो मेरा सवाल क्या होगा, whose mother died. Okay, keeping the question type 7 rule before you, write questions for the following answers. Keep the bold word in mind for making the question. The first statement, the statements are both these statements are same, but you have to make 2 different questions for them. Anjum's son won first prize, and like I told you, we can make things like we can make two questions in 2 different ways. तो इसके लिए मैं question बनाऊंगी who died, who won the first prize, और फिर मुझे आंसर बताया जाएगा Anjum's son won the first prize. फिर मैं इसका एक और क्वेश्चन बना सकती हूँ, whose son won the first prize, and then the answer would be Anjum's son won the first prize. Now you can see that I have made, for the same statement, I have made 2 different questions. Who won the first prize and whose son won the first prize. Let's move on to the next slide, and here we'll be doing question type 8A. He broke the window, and the question would be, what did he break? I met Ali's father. Who did you meet? Now you can see that the second form of the verb is used in each of the sentence. So you would be using did in your question with the other question word. Alright, the helping verb would be did. So what did he break? The second statement is I met Ali's father. Who did you meet? The third statement is I met Ali's father. And you can make this question another way. You can ask a question for the same statement in another way, and that would be whose father did you meet? I drove the office car. Which car did you drive? I spoke to Ali's father. To whom did you speak? Which, what, who, and whom can be used to ask about parts of the sentence other than the subject. ओके इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए अलग अलग से क्वेश्चंस बनाने हैं, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, और आपने अपनी पिछली स्लाइड को अपने माइंड में रखते हुए इनके लिए क्वेश्चंस बनाने हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही स्टोल माय फादर्स वॉच. What would be the question? You can see the helping verb is in second form, so you would be using did and you have to ask that who is the one who's really steals somebody's like your father's watch. So what would be the question? Who did steal your
father's watch, and you'll point at that person that he stole my father's watch, because वो बंदा आपके पास ही है और आपको उस पर शक है, right? तो आप उसकी तरफ पॉइंट करोगे और आप कहोगे he stole my father's watch. And what would be the question for the second statement? The statement is Pakistan beat India by 94 runs. Who beat India by 94 runs? No. Who did beat India by 94 runs? This would be the question. Okay. Now let's move on to the next slide, and that would be here you can find question type 8b, and the first statement is he came last week. When did he come? He lives in Karachi. Where does he live? He cried because of his mother. Why did he cry? He opened the door with a key. How did he open the door? Now you see that in each of the statement, in the first statement, the main verb is in the second form. In the second statement, the verb is in the present tense. In the third statement, it is again in the past tense, and in the fourth statement, and in the fourth statement also it's in the past tense. तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को अगर गौर से देखें तो इनके क्वेश्चंस बनाएंगे. He came last week. When did he come? He lives in Karachi. Where does he live? He cried because of his mother. Why did he cry? He opened the door with a key. How did he open the door? Now let's move on to the next slide, and that is now write questions for the following answers. The statements are given to you and you have to find out the questions for each of them. I like him because he is honest. Why do you like him? I saw Aisha last week. When did you see Aisha? He bought a watch from New York. What did he buy from New York? He came by bus. How did he come? Got it? So that is how you make questions very easily for the statements, by looking at the verbs, main verbs in the given statements. Okay, now in the next slide you'll find out the structure of sentence says the simple present and present continuous tenses. अभी हम किसकी बात करेंगे? हम simple present tense की बात करेंगे और हम present continuous tense की बात करेंगे. The simple present tense is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or write. जो भी काम अभी मेरे बोलने के वक्त पे हो रहा है, this is the present time, right? It represents the present time. So we'll be using simple present tense to to whatever we have to describe whatever is happening in the present time. अभी इस मेरे बोलने के टाइम पे जो भी काम हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी कंडीशन है, वो अभी प्रेजेंट टाइम में हो रही है, राइट? तो उसको बताने के लिए मैं कौन सा टेंस यूज करूंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस. Each of the highlighted verbs in the following sentences is in the simple present tense, and each sentence describes an action taking place in the present. अगर आप इन सब sentences को गौर से देखिए तो इन सब में वो बात बताई जा रही है जो अभी present time पे हो रही है. The first sentence is the wife waits patiently while the husband books the tickets. The second is the shelf holds 3 books and a vase of flowers. The crowd moves across the auditorium in an attempt to see the film star. And the fourth statement is both sisters are very talented. Romana writes and Momana paints. ठीक है, तो आपको ये सेंटेंसेस पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि जो भी बात कही जा रही है इस सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस में, वो सब बात अभी प्रेजेंट टाइम की है. अभी हम मेरे बोलते वक्त जो भी काम किए जा रहे हैं या आप बोल रहे हो और आप जो भी काम उस टाइम पे हो रहा हो उसको हमने डिस्क्राइब करना हो तो हम किस सेंटेंस की हेल्प से करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प से करेंगे. Okay, now let's move on to the next slide, and that is the simple present is used to express general truths such as
Scientific facts as in the following sentences. Rectangles have four sides. Pakistan Day takes place on March 23rd. The moon circles the earth once every 28 days. कोई चीज़ जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो एक हकीकत है, जो आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ हो रही है, जो एक डिसाइडेड थिंग है कि इस पर्टिकुलर थिंग डे पे या इस या एक एक्शन है जो रोज रोज हो रहा है, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो रुकता नहीं है कभी भी, या फिर कोई एक हकीकत है किसी चीज की। जैसे अब एक रेक्टेंगल है, उसकी फोर ही साइड्स होती हैं, तो वी विल ऑलवेज से दैट रेक्टेंगल्स हैव फोर साइड्स। देन पाकिस्तान डे जो है वो हम 23 मार्च को ही मनाते हैं हर साल, राइट। तो एक जनरल ट्रुथ है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि ये द मून सर्कल्स द अर्थ वंस एवरी 28 days, दिस इज the scientific fact as well as the universal truth कि जो चांद है वो 28 डेज में उसका जो सर्कल है अर्थ के गिर्द वो कंप्लीट होता है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए जो टेंस हम यूज कर रहे होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। नाउ लुक एट दिस स्लाइड। द सिंपल प्रेजेंट tense is used to indicate a habitual action, event, or condition as in the following sentences. Let's read the sentences first and then I'll explain you. My father goes to play tennis every Saturday evening. Now my father goes to play tennis every Saturday evening. हर सैटरडे को, हर सैटरडे की शाम को मेरे फादर जो हैं वो टेनिस खेलने के लिए जाते हैं. And the second statement is my grandmother sends me new clothes each spring. This is something that she does every year, right? हर साल वो मुझे spring में कपड़े भेजती हैं, नए कपड़े, right? So for this purpose also we will use the simple present tense. Now, if you look at the third statement, that is, the play ends with applause by the crowd. जो it's something that happens, like अगर कोई ड्रामा चल रहा है और जब वो एंड हो जाएगा तो जाहिर है विल ऑल क्लैप, ताकि जो वो प्ले कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द प्ले एंड्स विद अपलॉज बाय द क्राउड। जो ड्रामा है, जो प्ले है, जब वो जब खत्म होता है तो यू ऑल क्लैप। Okay, now if you look at this slide, you'll find that different subjects are given to you that are I, you, he, she, it, we, they. Normally we use these subjects in our sentences, and these subjects are the doer of the action. Subject कौन होता है? Doer of the action होता है. Now you see when we talk of the subject I, तो उसके लिए हम कौन सी verb form use करेंगे? We use simple form, simple first form, no s, no es. And the example of here that I've given you is I sing. See, I'm not saying I sings, right? I'm not adding any s or es with sing. I'm just keeping it simple because when we talk of the subject I, we always use the first form of the verb with it. Now let's move on to the next subject, and that is you. And with you also we just use the first form of the verb, and the example is you sing. Now let's move on to the subject he. And when we talk of the subject he, the form of the verb that we use with it is the first, but we add s with it or es with it, right? Depending upon the verb that we are using. And the example is he sings. If we talk about the subject she, here also we use s with the first form of the verb, and the example is she sings. When we talk of it, with it also we use the first form of the verb and we put s with it or es with it, depending upon the verb that we are using. So here the example that I've given you is it sings. Now move on to the next subject, and that is we. We के साथ हम simple form of the verb लगाते हैं, first form of the verb लगाते हैं, और इसके लिए जो example आप इस slide पे देख सकते हैं वो है we sing. Then let's come to the next subject, and that is next word that the subject that we use in our sentences. Normally we do a lot, and that is they.
के साथ हम सिंपल फॉर्म लगाते हैं फर्स्ट, और उसकी एग्जांपल जो मैंने आपको दी हुई है वो है दे सिंग। सिंपल सी चीज़ है जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप सेंटेंस में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो आपके पास, फॉर एग्जांपल कोई एक ही डूअर ऑफ द एक्शन हो, जैसे अली हो गया, सारा हो गया, कोई एक बंदा है जो सारा हो गई, जो एक बंदा है जो अपना एक्शन कर रहा है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो सिर्फ एक ही इंसान है या एक ही चीज़ है, तो आप उसके साथ जो वर्ब होगा उसके साथ आप एस या ई एस लगाएंगे। बट जब भी जहाँ भी आप यू लगा हुआ देखेंगे, वही लगे, ज़्यादा लोगों की बात हो रही होगी, दे की बात हो रही होगी, हुई की बात हो रही होगी, या आई की बात हो रही होगी, आई की बात हो रही होगी, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि विद ऑल प्लूरल subjects we put I also and we use first form of the verb with it also। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप ज़्यादा लोगों की बात देखेंगे तो आप वहाँ पे जो अपना वर्ब लगाएंगे वो आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आप उसके साथ कोई एस कोई ई एस कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। Now let's move on to the next slide. In other words, only third person singular subjects he, she and it have to have a verb with s or es। समझ आ गई? ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि he, she and it, उन सब के साथ जो हम verb यूज कर रहे होते हैं उसके साथ हम s या es लगा रहे होते हैं। And with most verbs, the third person singular form is created simply by adding s। However, with some verbs you need to add es or change the ending a little. Here are the rules. On the next slide, you can find the rules. Now you'll see verb ending in s. How to make the third personal singular. Add es. For example, he passes. अब आप देखें कि इसमें जो verb यूज हो रहा है वो ऑलरेडी s पे ही यूज हो रहा है, तो ऐसे वर्ड्स जो s ही पे एंड हो रहे हो उनके साथ हम क्या लगा रहे होते हैं, es लगा रहे होते हैं। फिर ऐसे वर्ब्स जो जिनकी एंडिंग जो है वो z पे हो रही होती है उनके साथ भी हम क्या ऐड कर रहे होते हैं, es ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल शी डोजेस। देन वो वर्ब्स जो sh पे एंड हो रहे होते हैं उनके साथ भी हम es लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा शी विशेस, शी विशेस। ch पे जो वर्ब एंड हो रहे होते हैं उनके साथ भी हम es लगा रहे होते हैं, ही वॉचेस। आप याद रखिएगा कि ये हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनके साथ जब हम ये वर्ब्स इस तरह से एंड हो रहे होते हैं कोई एस पे या जेड पे या एस एच पे या सी एच पे, तो हम उनके साथ ई एस लगा रहे होते हैं। देन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कोई भी वर्ब जिसका सेकंड लास्ट जो है वो आपका जो जो वो जो जो एंड हो रहा हो किसी कॉन्सोनेंट पे, तो आप उसको कैसे ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे वर्ड्स हैं, फ्लाई, क्राई, ट्राई, तो आप क्या करते हैं, आप वाई हटा देते हैं, वाई की जगह आप क्या लगा देते हो, आई लगाते हो, और उसके साथ आप ई एस ऐड कर देते हो। ऐसा ही होता ना, ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा कि जो कोई भी वर्ब जो है वो अगर वाई पे एंड हो रहा हो तो वाई को हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसकी जगह पे हम आई लगा देते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट फ्लाइज, शी क्राइज, he tries, anything else, and with anything else in any other verb which is not which is not ending at s or z or sh or ch or y, उसके साथ हम सिंपल s लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल he sings। Choose the correct simple present tense verb from the following slide. I works, yeah, work, workes in a bank. Which word is right? The subject is I, so will you choose work. She lives, lives in Faisalabad, so we choose the verb lives, because I told you whenever there is he, she, it, we put s or es with the verb. It rains almost every next day in Bhuvan. Rain every next day in Bhuvan, raines, almost every day in Bhuvan, so the answer would be rains, rains. Now let's move on to the next slide. Here I'll be telling you about the present continuous tense.
इस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं वो एम, इज, आर होता है डिपेंडिंग अपॉन द डूअर ऑफ द एक्शन, द सब्जेक्ट। और जो हम वर्ब यूज कर रहे होते हैं उसके साथ हम आईएनजी लगा रहे होते हैं। इधर आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट दी गई है वो है ही इज लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज। एक ऐसी चीज जो ऑन गोइंग है प्रेजेंट में, दैट इज उसको प्रेजेंट करने के लिए जो हम टेंस यूज कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। The present continuous tense is formed using two components, the verb be in the present tense and the ing form of a verb. Verb be means am, is, are, right? Present tense में जो verb be होता है वो किस में change होता है? am, is, are में. Here are the rules using the example verb sing. अगर सब्जेक्ट आई है तो आंसर दी स्टेटमेंट क्या बनेगी? आई एम एंड देन सिंगिंग। सिंग के साथ मैंने आई एन जी लगा दिया तो ये मेरा एक कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। आई एम सिंगिंग, यू आर सिंगिंग, ही इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग, it is singing, we are singing. Now you see where I have used which helping verb, and the verb I have put the ing. Now let's move to the next slide. How to make the ing form with many verbs. You can simply add ing to the end of the verb. However, with some verbs you need to change the ending a little. Here are the rules. कुछ verbs के साथ तो आप simple ing लगा देते हो तो वो आपका continuous verb बन जाता है, लेकिन कुछ के साथ आपको ending change करनी पड़ती है, तो वो आज आप देख लेंगे। Verb ending in one vowel and one consonant, ठीक है, जिसका सेकंड लास्ट लेटर जो होता है वो वॉवल होता है और लास्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट होता है, तो हम क्या करते हैं? डबल द कॉन्सोनेंट देन एड आईएनजी। तो हम उसका जो लास्ट लेटर होता है, जो कॉन्सोनेंट होता है, इसको हम डबल कर देते हैं। याद रखिएगा, वो कोई भी ऐसा वर्ड जिसका सेकंड लास्ट लेटर जो है वो वॉवल हो और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसको हमने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लेकर आना हो, तो हम उसके लास्ट लेटर को डबल करके उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्विम, स्विमिंग, हिट, हिटिंग। अच्छा, कोई वर्ड वन वॉवल प्लस वन कॉन्सोनेंट प्लस ई पे एंड हो रहा हो, तो आप क्या करोगे? आप ई को हटा दोगे। आप क्या करोगे? आप ई को हटा दोगे और फिर उसके साथ आईएनजी लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल कम, कम में जब आपने उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना होता है तो आप उसको कमिंग में चेंज करते हो, और आप देख सकते हो कि हमने ई हटा दिया और हमने आईएनजी लगाया। आपने क्या याद रखना है कि कोई भी वर्ड जिसका थर्ड लास्ट लेटर वॉवल हो, सेकेंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और बिल्कुल लास्ट में उसकी ई आ रहा हो, तो आप सिंपली सिर्फ ई हटा दोगे और आईएनजी लगा दोगे। आपने लास्ट लेटर को डबल नहीं करना है। इन दैट केस आपने सिर्फ ई को हटा देना है और साथ में आईएनजी लगा देना है। लूज, लूजिंग। और कोई भी और वर्ड हो तो उसके साथ आपने सिंपल आईएनजी लगा देना, कोई चीज हटानी नहीं है, कोई चीज डबल नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल से, सेइंग, गो, गोइंग। Now let's move on to the next slide. We use the present continuous tense to express an action that is happening now at this very point. It can also be used to show that something is not happening now. जो अभी मैं बोल रही हूँ, for example मेरा continuous tense क्या है? I am teaching you at the moment and you are listening to me. Right? So ये ऐसी चीजें हैं जो अभी हो रही हैं, चल रही हैं, तो इनको हम ing कॉन्टिन्यूअस फॉर्म से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, I am sitting, I am not standing, they are reading their books, they are not watching television. What are you doing? Why aren't you doing your homework? Longer actions, वो काम जो देर तक होता रहेगा उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको भी बताने के लिए, तो the tense that we use is the present continuous tense. For example, longer, listen to the definition first, and that is longer action in progress now in English can mean this second today, this month, this year, this century and so on. जो अभी हो रहा है, जो आज हो रहा है, जो नेक्स्ट मंथ हो रहा होगा, जो पूरा साल होता रहेगा, पूरी सदी होता रहेगा, ऐसी बातों को बताने के लिए sometimes we use the present continuous tense to say that we are in the process of doing a longer action. एक लंबी चीज है, एक लंबा काम है जो कुछ अरसे तक होता रहेगा, which is in progress. However, we might not be doing it at this exact second. मतलब अभी जब मैं बोल रही हूँ हो सकता है वो काम ना हो रहा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग
इन अ स्कूल, राइट? तो मैं एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो वो मैं अभी स्कूल के अंदर नहीं हूँ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन एक ऐसा काम है जो मैं करती हूँ इन रूटीन। ऐसी बातों को बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम रीडिंग द बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स। मैं एक बुक है जो पढ़ रही हूँ, मतलब अभी इस वक्त पे नहीं पढ़ी पर आजकल पढ़ रही हूँ, राइट? आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक्स राइट नाउ, आजकल मैं कोई भी बुक नहीं पढ़ रही। आर यू वर्किंग ऑन एनी स्पेशल प्रोजेक्ट्स एट वर्क? क्या आपका कोई स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है आपके काम पे? आरंट यू टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी नाउ? क्या आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते? तो ऐसी बातों को जब हमने करना हो तो हम कौन सा टेंस यूज कर रहे होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे होते हैं। एक ऐसी चीज जो बहुत टाइम तक होती रहेगी। अभी हो सकता है कि अभी जब आप मुझसे बात कर रहे हो तो उस टाइम पे वो काम ना हो रहा हो, लेकिन इन रूटीन थ्रू द ईयर, थ्रू द मंथ, थ्रू द डे यू विल बी डूइंग इट। तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए जो हम टेंस यूज करते हैं वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Near future, sometimes speakers use the present continuous to indicate that something will or will not happen in the near future. ठीक है, कोई काम आने वाले दिनों में होने वाला हो या नहीं होगा, इस चीज़ को बताने के लिए भी जो हम टेंस यूज करते हैं वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क। आज मतलब मैं अपने कुछ दोस्तों को मिल रहा हूँ काम के बाद। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। आज मैं पार्टी पर नहीं जा रहा। Is he visiting his parents next weekend? क्या वो अपने पेरेंट्स को नेक्स्ट वीकेंड पे विजिट कर रहा है? Is he coming with us tonight? क्या वो हमारे साथ आज आ रहा है? ऐसी भी बातों को जब हमने करना हो, ऐसी भी कोई चीज़ हमने जब किसी को बतानी हो, किसी से कहनी हो, जो काम आने वाले वक्त में होने वाला हो, तो sometimes we use a tense for it, and that is present continuous tense. For example, let's do the exercise. Right now, Daniel is sleeping, and the answer would be sleeping. They dash to some music on the radio, are listening, listen. Are listening, they are listening to some music on the radio. Dash in ghosts, believe you, do you believe, are you believe? And the answer will be, do you believe, are you believing in ghosts? Are you believing in ghosts, right? Ghosts. Okay, that is it for today. I hope you would have understood the lecture pretty clearly. कब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, कब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किन सिचुएशंस में यूज करते हैं, इन सब बातों को इन सब बातों को करने के लिए जो हम टेंसेस यूज कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अगर मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि व्हाट हम कब यूज कर रहे होते हैं जब हमने कभी किसी ऐसी चीज की बात करनी होती है जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ द जो सेंटेंस होता है, जब वो ह्यूमन नहीं होता तो हम व्हाट यूज कर रहे होते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल्स दी। एग्जांपल्स तो आई गिव यू सो मेनी एंड ऑन योर स्क्रीन देयर वर टू, लेकिन इनमें से एक को अभी डिस्कस कर लेते हैं। द हेवी रेन डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड द स्पेसिफिक thing in this statement is the heavy rain. So how did you change the question in the for this statement? You asked the question, what destroyed the crops? फिर क्वेश्चन टाइप 7 हमने पढ़ी, जिसमें आपको पहली स्टेटमेंट जो दी गई थी वो थी नंबर 120 बस गोस देयर। बहुत सारी बसेस हैं और आपने सिर्फ उस बस का पूछना है जो उस जगह पे जाती है जहां आप जा रहे हो। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? विच बस गोस देयर। फिर मैंने आपको बताया कि यू कैन आस्क, जब आपने किसी इंसान के बारे में पूछना होता है तो आप हु और हुज दो क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं। दो आपके पास एक ही स्टेटमेंट दी गई जिसके लिए मैंने दो डिफरेंट तरीके से सवाल बनाया। पहली स्टेटमेंट थी आयशा's mother died, तो मैंने इसके लिए सवाल बनाया हु डाइड। सेकेंड स्टेटमेंट थी आयशा's mother died, और सेम स्टेटमेंट थी और मैंने इसके लिए सवाल बनाया whose mother died. So there are different ways of asking questions for the same statement sometime. फिर इसके लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिया छोटा सा, and that was Anjun son won first prize and Anjun son won first prize. The same statement was given twice to you. और उसके लिए आपने क्वेश्चन बनाया who won the first prize, and then you made another statement question whose son won the first prize.
फिर क्वेश्चन टाइप 8A आया, जिसमें आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई और उनको आपने आपने देखा कि पहली जो थी वो थी ही ब्रोक द विंडो, और उसके लिए स्टेटमेंट था व्हाट डिड ही ब्रेक, आई मेट अलीज फादर, हु डिड यू मीट, आई मेट अलीज, हु डिड यू मीट, एंड देन देयर वाज द सेम स्टेटमेंट अगेन, आई मेट अलीज फादर, whose father did you meet, I drove the office car, which car did you drive, I spoke to Ali's father, to whom did you speak, which, what, which, what, whose, and whom can be used to ask about past sentences other than the subject. मैंने आपसे ये कहा कि जब आप सवाल बना रहे होते हैं तो आपके पास जो स्टेटमेंट होती है उसके वर्ब को देखना बहुत ज़रूरी होता है. अगर वो पास्ट टेंस में है तो आप डिड यूज़ करोगे अब, और अपने क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करोगे उसके साथ. और अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो आप डज डू लगा सकते हो. ठीक है, तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द वर्ब that is given in the statement. उसके हिसाब से आपने अपने क्वेश्चन में वर्ब और दी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो आपने यूज करना होता है. फिर इसके लिए आपको दो क्वेश्चन दिए गए ही स्टोर एक्सरसाइज के लिए, और वो थे ही स्टोर माय फादर्स वॉच एंड पाकिस्तान बीट इंडिया बाय 94 रन्स. और आपने उनके लिए क्वेश्चंस बनाए. who did steal my father's watch, who did steal your father's watch, and who beat India by 94 runs, right? So that is how it was done. फिर आप क्वेश्चन टाइप 8B पे पहुंचे. वहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको दी गई. ही केम लास्ट वीक, ही लिव्स इन कराची, ही क्राइड बिकॉज हिज मदर डाइड, बिकॉज ऑफ हिज मदर ही ओपन द डोर विद अ की. और आपने देखा कि हर क्वेश्चन का, हर स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है वो उसके वर्ब के हिसाब से बनाया गया. फर्स्ट स्टेटमेंट ही केम लास्ट वीक, और उसका क्वेश्चन था when did he come. So we use did and the first form of the verb, because when we use did, we put first form of the verb with it. Then he lives in Karachi. Where does he live? Because it is in the present tense. He cried because of his mother. Why did he cry? Cried is the second form of the verb. So in the question we use did, and with that we use the first form of the verb. In the last statement there was he opened the door with a key. और इसका क्वेश्चन जो हमने बनाया वो था how did he open the door, उसने दरवाजा किस तरह खोला. Did, when we using did, with that we always use the first form of the verb. Now फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे गए और वहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई थी बहुत सारी. आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, आई सॉ आयशा लास्ट वीक, ही बॉट अ वॉच फ्रॉम न्यूयॉर्क, ही केम बाय बस. और उसके लिए आपने बहुत आसानी से क्वेश्चंस बना लिए. आई लाइक हिम बिकॉज ही इज honest. Why do you like him? I saw Aisha last week. When did you see Aisha? He bought a watch from New York. What did he buy from New York? He came by bus. How did he come? फिर मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के बारे में कि ये प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्शन हो रहा होता है, उसको इवेंट हो रहा होता है, जो भी कंडीशन होती है, अगर उसके बारे में आपने बात करनी है तो आप प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. फिर आपने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी. उसके बाद आपको मैंने ये बताया कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं उनको उनके बारे में आपने बात करनी हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. फिर आप किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करनी, किसी इवेंट के, किसी कंडीशन के बारे में बात करनी हो तो आप प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगेगी. फिर मैंने आपको ये बताया कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ जो वर्ब हम यूज कर रहे होते हैं उनके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम कुछ भी ऐड नहीं करते. फिर मैंने आपको एक टेबल दिखाया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्ड एस जेड एस एच के सी एच पे खत्म हो रहा होगा तो हम उसके साथ ई एस लगाएंगे, और अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे खत्म हो रहा होगा तो हम उस वाई को आई में चेंज कर देंगे और उसके साथ ई एस लगा देंगे. तो वो दीज आर द रूल्स. फिर मैंने आपको बताया कि इन सब कंडीशन में कोई भी कंडीशन में एक सिंपल वर्ड है तो उसके साथ सिंपली हम सिर्फ एस ऐड कर देंगे. फिर आपको एक एक्सरसाइज मिली जो आपने बहुत आसानी से समझ ली होगी, आई एम श्योर. फिर मैंने आपको बताया कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. फिर मैंने उसके लिए भी आपको सब्जेक्ट के हिसाब से बताया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म यूज होती है, और उसके साथ फिर मैंने आपको ये बताया कि जो भी वर्ब है उसके साथ आप आईएनजी किस तरह लगाते हैं. फिर मैंने आपको रूल्स बताए कि अगर वॉवल और कॉन्सोनेंट पे वर्ड खत्म हो रहा है, मतलब अगर सेकंड लास्ट वर्ड का सेकंड लास्ट लेटर वॉवल है और एंड वाला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है तो आप उसको डबल करके लेटर को कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगा देंगे. फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर एक वर्ड वॉवल पे और एक कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है और साथ में एंड में ई आ रहा है, मतलब थर्ड लास्ट वॉवल है, सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट है और थर्ड लास्ट ई है, सॉरी लास्ट ई है, तो यू सिंपली जस्ट एलिमिनेट ई को हटा दोगे और आईएनजी लगा दोगे. किसी चीज को डबल नहीं करना, सिर्फ ई को हटाना है और आईएनजी लगा देना है. और अगर कुछ आम इन सब रूल्स के अलावा कोई वर्ड है तो आप उसके
साथ सिंपली आईएनजी लगा दोगे। फिर हमने ये एक्सरसाइज की जिसमें उन्होंने आपको different examples दी, you're learning English now, I'm sitting, I'm not standing, you're reading your books, you're not watching television, what are you doing, why aren't you doing your homework, ये सब किस में थी, continuous present continuous tense में थी। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपने longer action को बताना हो तो आप उसके लिए भी continuous tense यूज करते हो। फिर मैंने आपको ये बताया कि वाई मतलब मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं फिर आपको एग्जाम्पल्स देते हैं कि अगर मैं अभी पढ़ाई उसमें आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देखी, आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। क्यों मैं पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं आई एम रीडिंग द बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स। मैं आजकल एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम गुलिवर्स ट्रेवल्स है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइम पे बोल रहे हैं उस टाइम पे वो एक्शन हो रहा हो। एक लॉन्गर एक्शन जो होता है उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और फिर आप करीब के फ्यूचर में अगर कोई एक्शन होने वाला हो, मतलब आज ही अभी नहीं शाम को अगर कोई एक्शन होने वाला हो या कल कोई एक्शन होने वाला हो या इसी वीकेंड पे कोई एक्शन होने वाला हो, ऐसी बातों को बताने के लिए भी अगर हम कोई टेंस यूज कर रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और फिर ये आपको लास्ट में एक एक्सरसाइज नजर आए जिसमें आपको डिफरेंट 3 एग्जांपल दी, राइट नाउ Daniel is, और उसके साथ आपके 3 ऑप्शंस हैं। You would be easily choosing sleeping for that. They are listening to some music in the radio. Are you believing in ghosts? So that is how the whole of the lecture was delivered to you. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। I hope कि मैं जिस तरीके से आपसे आपको लेक्चर डिलीवर करी हूँ उसमें समझने में आपको आसानी हो रही होगी। Please go through all the exercises, go through everything, all the definitions, all the charts and tables that I've given to you, all the rules, and do ask me if there would be any thing to ask, and I would always be available to you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।